I was waiting, I was praying, holding on to what he said. In the silence, God was moving, writing love I hadn't met. I dreamed of someone strong and kind, who loves the Lord more than I. You are my answered prayer, a quiet hope, a love prepared. You lead me closer to his heart. You've been his promise from the start. I waited long, but now you're here. You are my answered prayer. You don't run when days are heavy. You remind me who I am. We don't need to chase the feeling. We just walk his perfect plan. And when I fall or lose my fight, You hold my hand and lift my eyes. you are my answered prayer, a quiet hope, a love prepared. You lead me closer to his heart. You've been his promise from the start. I waited long, but now you're here. You are my answered prayer. I was just praying for you. Now I'm praying with you. From whispered dreams to morning light, God brought us both in his time. You are my answered prayer, more than I knew was even there. We worship now, we grow in grace. Two hearts that seek his holy face. I waited long, but now you're near. You are my answered prayer. Oh, you are my answered prayer, more than I knew was even there. We worship now, we grow in grace. Two hearts that seek his holy face. I waited long, but now you're near. You are my answered prayer. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in with all my heart. खड़े हो जाए
और हम लोग कुछ पल के लिए इधर उधर की बातों से अपने मन को हटाकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, थोड़ा स्थिर हो जाएंगे और परमेश्वर पिता की ओर अपनी नजरों को लगाएंगे और उसकी स्तुति और उसकी महिमा हम मिलकर करेंगे। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, हर कोई अपने स्थान पे खड़े हो जाए और मिलकर इस समय मौका क्या आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तुमने हम सबों की सहायता की, आपने हर एक चीजों का प्रबंधन करने में सहायता की, हर चीजों में प्रभु आपने अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर हम सबों को आशीषित किया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे मौत को ठोकर से बचाया, हमारे जीवन को मृत्यु से बचाया, हमारे आंखों को आंसू से बचाया और प्रभु हम सबों को अभी तक जिंदा रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस अच्छे मौके पे प्रभु जो आपके द्वारा नियुक्त था, जो आपके द्वारा तय किया गया था प्रभु, और आज हम सब इस दिन को पिता you're here, don't think that you're here to witness a marriage. So, because the idea of marriage is did not originate from human mind. Man did not ask for a partner, didn't find anywhere else. You can't find anywhere else, and this blessing is the blessing of multiplication. Bible says, now multiply. Once they were married, God said, multiply, multiply. 1 + 1 is usually 2, right? But even after they multiplied, they became 1 + 1 is 1. That's what the Bible says, the maths, that the two shall become one flesh. But then there is multiplication. If you may think that 2 became 1, but in God's idea, in God's ways, that is multiplying. That is how you multiply. When you come together, you multiply. When you join with each other, you multiply. There is one place on this entire planet where you can find the blessing of multiplication, and the place is called marriage. Because it is considered of 4 different loves: agape, storge, phileo, and eros. And when you see in this environment of these 4 loves, this environment is built on these 4 pillars, these 4 loves that I told you about. And in this environment, there is growth. In this environment, if there is one purpose, they will reach where God has decided for them, the place that God has decided for them. Amen. Let me tell you something. The Garden of Eden wouldn't be the Garden of Eden without marriage. The Garden of Eden wouldn't be the Garden of Eden without marriage. Amen. I pray that this couple will be blessed, and everybody who are in this place who are married. And I pray that we will have the same purpose in our life. We will always look at one purpose, one destination. We will always try to reach one destination. We will not fight over little things. मेरी बात नहीं रखी गई, उसकी बात रखी गई. Doesn't matter. What matters at the end of the day is whether you are happy or not. You can be happy even if your desire was not fulfilled. Because happiness doesn't require desires to be fulfilled. Happiness requires the presence of God in your life. If you really want to be happy, don't look for people who will do what steals the joy of the Lord. You'll become weak, and after that it is very easy to attack you and destroy you. So always have the presence of God in your life. That will give you the joy.
Don't depend on your partner for joy. Don't depend on your husband or your wife for joy and happiness. They will never be able to fulfill your desires always. Let me tell you, this is the truth. This is the fact. Don't look for God in your partner. That's what we do. We think that the responsibility to keep me happy belongs to my spouse. It is his or her responsibility to keep me happy. No. It is God's responsibility to keep you happy. You have to look to God for happiness. Have the purpose. Have the same purpose with your spouse. Have the same desire with your spouse. Rest, God will keep you happy. God will take care of you. God will provide for you. God will do everything that is needed. But you have to have the same purpose and the same desire. And depend on God only for joy and happiness. Don't depend on your spouse for happiness. That's a wrong source. It's a wrong, it is a source with limited capacity. It can, obviously they can make you happy, but not forever. They can make you happy, but not forever. Only God can make you happy forever. Forever. Amen. I pray that you will have the environment of marriage healthy. You'll have a nourishing environment in marriage. I pray that we will have the 4 different loves in marriage. I pray that we will grow together and have the same purpose. God bless you all. Let us close with prayer. Precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful day. We thank you for, thank you for Andy and Vatsala. I thank you, Lord, for their lives. I thank you that you have brought them up till this point to bring them together and to let them multiply and dominate over this earth, Father. I pray and I speak the blessing of multiplication over this couple, and I pray, Father, that they will multiply and subdue the earth, Father. In the realm of the Spirit, Lord, they will dominate on every situation that comes against them. I pray that they will be the head and not the tail. I pray that they will be the lender and not the borrower. They will be the master over their situations, Father. I pray that they will walk on waters and never be afraid. I pray that they will walk on fire and not be burned. I pray that they will soar on wings like eagles and never be weary, Father. I pray that your presence will rest in their lives. Let your presence be the center of their marriage, Father, and every decision they take, I pray that it will be filtered by the word of God, and it will be taken and dipped in the blood of Christ. And I pray that their marriage will be a blessing and an example for many to follow. And I also pray for everyone who's sitting here, Lord. May you bless us with your presence and with your love. In Jesus' mighty name I pray. तब से देख रहा हूँ जब ये गोद में थे, है ना। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने मौका दिया है कि इन लोगों की शादी इसलिए सलामदारी होगा तो धर्म में से निकालेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन होंगे। आदम और उसकी पत्नी रहती है तो खुदा का वचन बोलना है। एक जोड़ा और आपस में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। शादी के पहले तो प्यार था, शादी हो गई तो और प्यार बढ़ गया। और जो औरत है, स्त्री है, वो आदमी को बहुत प्यार से बुलाती, हमेशा बोलती जान, बोलती बच्चे भी हमेशा बोलती जान, वही बड़ा खुश हो जाता है, बोलता बोलो रानी। तो एक दिन वो पूछती है, तो सोचते तो तुम्हें जान दो क्यों? तो नहीं, जानवर शब्द थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्ट में जान बोल देती। तो उससे नहीं बोल दिया, तो सोचते हो तुम्हें नहीं क्यों बोलता हूँ? तो बोली तो नौकरानी शब्द थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं तुम्हें रानी बोल देता हूँ। तो भैया ना तुम जानवर हो और ना तुम नौकरानी, बनने नहीं जा रहे। समझ में आ गया खुदा ने क्या बनाया है? एक दूसरे के लिए सहायक। God said, I will make an help for him. Okay? Help ना, सहायता, नौकरानी नहीं ना, जानवर नहीं, सहायता, सहायता
ठीक है? हाँ, ताजुब मत करो, पापा से पूछ लेना। हाँ, यह आता परिवार है, परिवार में एक दूसरे को साथ कि आदम क्या करे, जानवरों का नाम रखे, तो आदम उनका काम करने लगा। खुदा से भी बैठ गए एक धर्म और खुदा भी अपना के लिए कोई जोड़ा। समझ में आया? जानवर मत बनना भाई, पारिवारिक जीवन में बहुत लोगों को मैंने देखा है, जानवर से ही पत्थर हो जाते हैं पति पत्नी एक दूसरे के संबंध ना हो। परमेश्वर ने आपको अति महान अच्छी सृष्टि बनाया है, वो है मनुष्य। मनुष्य बन के रहो। तीसरी बात बता के समाप्त। परमेश्वर ने कहा जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई मनुष्य अलग कोई किसी को भी अधिकार नहीं। माँ बाप का सास ससुर एवं पति पत्नी को भी अधिकार नहीं जो दूसरे को डिस्टर्ब कर सके। अगर खुदा जोड़ता है ये याद रखना, खुदा ने जोड़ा हमेशा के लिए जोड़ा। खुदा तुम दोनों को बहुत आशीष दे और हमेशा के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि अकेला रहना ठीक नहीं, तो उसके लिए एक सहायक खुदा ने ढूंढा है। और आज यानी कि उस पसली से खुदा ने बहुत सलाह बनाया। तो खुदा आप दोनों शादी का अर्थ क्या हो? What is marriage? It's all about shaping each other. आप दोनों को एक दूसरे को आकार देना, क्योंकि जब तक आप दोनों एक दूसरे का आकार नहीं देंगे तब तक आप एक दूसरे के साथ कभी भी खुशी से नहीं रह सकते। इसलिए अगर आकार देना है तो एक दूसरे के चरित्र, मूल्य और नैतिकता को आकार देना है। अगर निखारना है तो एक दूसरे की आदतों को, व्यवहार और दृष्टिकोण को, अगर स्वभाव को समर्थन करना है और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास और विकास को प्रोत्साहित करना है। अगर एक आगे बढ़ता है तो एक सहायक बनकर उसको प्रोत्साहन करेगा, क्योंकि जब आप पति बढ़ेगा तो पत्नी खुश होना है, जब पत्नी बढ़े तो पति को खुश होना है। ईगो बीच में नहीं जाना है कि वो इतना कमा लिया मैं इतना नहीं। जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करोगे तो आप एक दूसरे को आकार दोगे, एक दूसरे के साथ आप बढ़ोगे। क्योंकि मैं बस ये जानता हूँ कि संसार में कोई परफेक्ट नहीं, कुछ कमियां एंडी में भी है, कुछ कमियां तितली में भी है। तो इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को आकार दें, शेप दें, ताकि जो हमको बनाता है। तो शादी भी यही है, एक दूसरे को, जैसे खुदा ने कहा कि एक से भले दो, तो आप दोनों एक होने जा रहे हैं। जब एक गिरेगा तो ये क्या करेगा? उठाएगा, गिराएगा नहीं, उठाएगा। अगर एक रोएगा तो एक चुप करेगा, एक भूखा रहेगा तो दूसरा खिलाएगा। तो आइए अब हम लोग शादी के विधि विधान में हम लोग चलेंगे। ये खुदा अनिकेत और वत्सला को बहुत आयत से एक दूसरे में जोड़े, एक शरीर, एक मन और उस एक आत्मा में जो डोरी तीन आंखों से बटी होती है उसे कोई काट छाड़ नहीं सकता। तो उसकी कलीसिया के बीच में है और विवाह में उपस्थित होने और गलील के काना नगर में पहला आश्रय करने से मसीह ने इस पवित्र दशा को आभूषित और सुशोभित किया। इसलिए कोई स्निग्धता और अबुद्धिमानी से इस कार्य में हाथ न लगावे, परंतु बड़े आदर भाव, सोच विचार और ईश्वर के भय से इसमें समृद्ध हो। मैं कांग्रेगेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दोनों स्त्री कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे ये व्यवस्था के रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं तो बतलावे, नहीं तो इसके पश्चात सदा तक चुप रहे। कोई नहीं तो आप सब जितने भी उपस्थित है, आप जो भी कारण इसके बाद जानते हो, सदा के लिए आपको क्या होना है? चुप होना।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तुम दोनों से यह कहता हूं कि यदि तुम में से कोई ऐसा कारण जानता हो कि जिसे तुम अपना विवाह व्यवस्था की रीति से नहीं कर सकते हो, तो उसे अभी बतलाओ। और इससे निश्चय जानो कि जिसने ईश्वर के वचन की सम्मति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं, उनको ईश्वर नहीं जोड़ता और न उनका विवाह है। और यह मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर के अनुसार विवाह को पवित्र दशा में रहोगे। क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगे और उसे शांति दोगे, उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। वत्सला साराला, क्या तुम इस पुरुष को अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह मान लेती हो कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में उसके साथ रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगी और उसका आदर करोगी और उसको अपने पास से अलग न करोगी और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ रहोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। इस स्त्री को इस पुरुष के हाथ में कौन देता है? मैं अपनी बेटी को वत्सला सारालाल को मैं अनिकेत तुझ वत्सला सारालाल को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता स्त्री स्वीकार करता हूँ। आज के दिन से और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता मैं तुझसे मिला रहूंगा और तुझे प्यार करूंगा और तेरी सुधि लेता रहूंगा और विश्वास पूर्वक तुझे यह वचन देता हूँ। मैं वत्सला सारालाल तुझ अनिकेत को परमेश्वर के पवित्र नियम अनुसार अपना विवाहिता पति स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग न करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता मैं तुझसे मिली रहूंगी और तुझे प्यार करूंगी और तेरी सुधि लेती रहूंगी और मैं विश्वास पूर्वक तुझे ये वचन देती हूँ। ये दोनों विवाह के बंधन में बांधे गए और ये उनके प्रतीक स्वरूप जो चिन्ह होता है, अंगूठी, जो परमेश्वर उस पर आशीष देंगे और वो अंगूठी उनके लिए एक अमर प्रेम का चिन्ह बना रहेगा। आइए हम इस अंगूठी के लिए प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से ये अंगूठी इन दोनों के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने, जो प्रतिज्ञा और वचन उन्होंने आज एक दूसरे दिए हैं उनको स्मरण करते रहे, ये हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मांगते हैं। आमीन। सारी संपत्ति तुझे देता हूँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हम लोग ताली बजाएंगे। मैं इस छल्ले से मैं तुझे ब्याती हूँ और अपनी संसारिक संपत्ति तुझे देती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। आमीन। हम लोग ताली बजाएंगे।
जबकि अनिकेत और वत्सला सारालाल ने इस पवित्र विवाह में परस्पर एकांत किया है और इन दोनों ने परमेश्वर और इस सभा के सन्मुख इस बात को मान लिया है, एक दूसरे को विश्वास के साथ स्वीकार भी किया और एक दूसरे को अपने हाथों के मिलान से प्रकट किया। मैं कहता हूँ, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुझको वर देवे, तुम्हारी रक्षा करे और यह तुम्हें आत्मिक आशीष और अनुग्रह से ऐसा परिपूर्ण करे कि तुम इस जीवन में एक साथ ऐसा निर्माण करो कि परलोक में अनंत जीवन प्राप्त करो। आमीन। विवाह का आदर करें और हमेशा प्रभु आपके वचन के अनुसार चले। अनिकेत और सारा दोनों की प्रार्थना है प्रभु, हर शैतान का हमला इनके नए परिवार से दूर है और ये लोग आपकी महिमा करते हैं। सारी अपने माँ को बता देते हैं, आपकी विशेष आशीष हमारे प्रतिदिन की रोटी और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। ये अनुग्रह आज से प्रारंभ है और इसको कभी भूलिए नहीं। आप उसे भूसा नहीं कहेंगे, अपने को चावल नहीं कह सकते। भूसा अगर चावल से अलग हो जाएगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप उससे आवाज निकालिए और जो लोग नदी की तरफ से 2 गवाह और mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last
Talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say it's true. Oh, I hope you know I will carry you up, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways that this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know, in this and every life, I choose us every time. California dreaming, our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in, but we kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say I do. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never
never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I think that you are the one for me, 'cause it gets so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free. When you're looking at me, I've never felt so happy. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए।
घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। साजन जी घर आए। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ऐसा क्यों कैसे बोलो बोलो। हाँ मुझ पे तो ऐ दिलरुबा तेरी ये स्टॉक्स तू रेड बुल नाल गला सिखंब लगे मेरे मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बनो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भागे, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सो बनाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओ चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। कोयलें सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किस मिलने आएंगी, खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। ओढ़ के खानी रीत की चादर आया तेरे शहर।
नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा होगा